ہمارے پیارے سیون کے خاندانی اراکین جو آج یہاں جمع ہیں، آپ کثرت سے برکات حاصل کریں۔ میں خدائے الوہیم کو لامحدود شکر اور جلال دیتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں آسمانی والدین کا دن منانے کی اجازت دی ہے۔ آج ایک قیمتی دن ہے جب آسمانی باپ نے ہم پر ظاہر کیا کہ آسمانی ماں کون ہے اور ہمیں سچائی سے بیدار کیا۔ جبکہ دنیا میں ہر کوئی زندہ آسمانی باپ اور آسمانی ماں سے ملنے کی خوشی سے ناواقف ہے، جنہیں انہوں نے آسمان میں کھو دیا تھا، سیون کے ہمارے خاندانی اراکین نے آسمانی باپ اور آسمانی ماں کا خیر مقدم کیا ہے۔ یہ ہمیں حقیقی معنوں میں آسمانی خاندان کا حصہ بناتا ہے۔ یہ واقعی وہ لمحہ ہے جب ہم ایک بار پھر اس سچائی کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ پہلے ہم نہیں جانتے تھے کہ ہمارے آسمانی باپ اور ہماری آسمانی ماں کون ہیں۔ ہم نے اپنی زندگیاں آسمان کی تمام یادوں کو بھول کر صرف اور صرف اس زمینی وجود پر مرکوز کرتے ہوئے گزاری ہیں۔ تاہم باپ اس زمین پر آئے تاکہ ہم پر یہ ظاہر کریں کہ آسمان کی بادشاہی ہمارا حقیقی روحانی گھر ہے، اور یہ کہ ہمارے آسمانی باپ، ہماری آسمانی ماں اور ہمارا روحانی خاندان آسمان میں ہے۔ آج وہ اہم دن ہے جب انہوں نے اپنے فرزندوں کو اس سچائی سے آگاہ کیا تھا۔ آج انہوں نے ہمیں آسمانی خاندان کا احساس اور اہم ترین حکم بخشا ہے کہ محبت میں متحد اور ہم آہنگ رہو، کیونکہ آسمانی خاندان محبت کی جماعت ہے۔ ہم اکٹھے یوحنا کی انجیل باب 13 کی طرف جاتے ہیں۔ آئیں باب 13 آیت 34 سے دیکھتے ہیں۔ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اسے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ خدا نے ہمیں نیا حکم بخشا ہے جو کہ نیا عہد ہے۔ نئے عہد کی مرکزی تعلیم یہ ہے کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دوستوں کے درمیان دوستی اور ساتھی کارکنان کے درمیان تعلق کتنا اچھا ہے۔ کیا ہمارا گھر ایسی جگہ نہیں ہے جہاں محبت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے؟ خاندانی محبت غیر مشروط محبت ہے۔ جیسے باپ اور ماں کی محبت ان کے بچوں کو غیر مشروط طور پر دی جاتی ہے، اسی طرح بچوں کو بھی اپنے بھائیوں اور بہنوں سے غیر مشروط محبت رکھنی چاہیے۔ خدا نے ہمیں اپنے بھائیوں اور بہنوں کو عزیز رکھنے اور ان سے محبت رکھنے کی تعلیم دیتے ہوئے ایک نیا حکم بخشا ہے۔ اس لیے یہاں بیان کردہ حکم کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو کوئی ایسی تجویز نہیں ہے جسے ہم نظر انداز کرنے کا انتخاب کر سکتے ہیں، بلکہ ایسا حکم ہے جس کی ہمیں مکمل طور پر اور دیانتداری سے فرمانبرداری کرنی چاہیے۔ جیسے کہ باپ اور ماں نے ہم سے یعنی اپنے فرزندوں سے محبت رکھی، ہمیں بھی یہ سکھایا گیا ہے کہ اپنے بھائیوں اور بہنوں اور دنیا کے ساتھ اس محبت کو بانٹیں۔ جیسا کہ ہم نے سیکھا ہے، خدا نے ہمیں آسمانی والدین کے دن پر یہ تعلیم بخشی ہے۔ نئے حکم کو مکمل طور پر پورا کرنے کی غرض سے ہمارے پیارے آسمانی خاندان میں سب کو ایسا ایمان رکھنا چاہیے جو ہمیں ایک دوسرے سے محبت رکھنے کے قابل بناتا ہے، جیسا کہ مسیح نے ہمیں سکھایا تھا۔ آئیں پہلے کرنتھیوں کی کتاب باب 13 پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ہم اکٹھے باب 13 آیت 1 کے الفاظ اس محبت کے عمل کے حوالے سے دیکھتے ہیں جس کی خدا خواہش کرتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں باب 13 آیت 1۔ اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل یا جھنجھناتی جھانجھ ہوں، اور اگر مجھے نبوت ملے اور سب بھیدوں اور کل علم کی واقفیت ہو اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں، اور اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں
या अपना बदन जिलाने को दे दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मुझे कुछ भी फायदा नहीं। मोहब्बत साबिर है और मेहरबान। मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं, नाजेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझुलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती बल्कि रास्ते से खुश होती है, सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है। मोहब्बत को जवाल नहीं। नबुव्वतें हों तो माकूफ हो जाएंगी, जुबानें हों तो जाती रहेंगी, इल्म हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा इल्म नाकिस है और हमारी नबूवत नातमाम। लेकिन जब कामिल आएगा तो नाकिस जाता रहेगा। जब मैं बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता था, बच्चों की सी तबीयत थी, बच्चों की सी समझ थी। लेकिन जब जवान हुआ तो बचपन की बातें तर्क कर दी। अब हमको आईने में धुंधला सा दिखाई देता है, मगर उस वक्त रूबरू देखेंगे। इस वक्त मेरा इल्म नाकिस है, मगर उस वक्त ऐसे पूरे तौर पर पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूं। गर्ज, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों दायमी हैं, मगर अफजल इनमें मोहब्बत है। इसलिए जो लोग खुदा बाप और खुदा माँ के वफादार बनना चाहते हैं, उनके लिए खास तरीन तरीका खुदा के कलाम की फरमाबरदारी है। खुदा ने हमें क्या पैगाम दिया है? मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो। ये वो सबक है जो उन्होंने हमें बख्शा है। पहले कुरिन्थियों बाब 13 के जरिए खुदा ने मोहब्बत के मुख्तलिफ अमली पहलुओं को तफसील से बयान किया है और हमें याद दिलाते हैं कि जो इन बातों को मानते और इन पर अमल करते हैं वो खुदा के मुशाबे होते हैं। आए पहले यूहन्ना की किताब बाब 4 की तरफ जाते हैं। हम पहले यूहन्ना की किताब बाब 4 आयत 4 से देखते हैं। ऐ बच्चों, तुम खुदा से हो और उन पर गालिब आ गए हो, क्योंकि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। वो दुनिया से हैं, इस वास्ते दुनिया किसी कहते हैं और दुनिया उनकी सुनती है। हम खुदा से हैं, जो खुदा को जानता है वो हमारी सुनता है, जो खुदा से नहीं वो हमारी नहीं सुनता। इसी से हम हक की रूह और गुमराही की रूह को पहचान लेते हैं। ऐ अजीजों, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है। किताब मुक़द्दस कहती है कि मोहब्बत खुदा की तरफ से है, और जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को जानता है। जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। खुदा मोहब्बत है। लेकिन दुनिया में लोग खुदगर्ज होकर सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। अगरचे ज्यादातर लोग अपनी जिंदगियां अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक गुजारते हैं, पर क्या ये बिल्कुल बाप की दरखास्त और माँ की उम्मीद नहीं है कि आसमानी फर्जंद इसके बरक्स जिंदगी गुजारें? ऐसा करने से हम दुनिया को बदल सकते और इसे तकमील तक पहुंचा सकते हैं। लिहाजा शरीयत में मोहब्बत को क्या कहा जाता है? इसे तामील कहते हैं। एक बार फिर इस मंजर को देखते हैं। आए रोमियो की किताब बाब 13 आयत 8 से देखें। रोमियो बाब 13 आयत 8। आपस की मोहब्बत के सिवा किसी चीज में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से मोहब्बत रखता है उसने शरीयत पर पूरा अमल किया। क्योंकि ये बातें कि जिना ना कर, खून ना कर, चोरी ना कर, लालच ना कर और इनके सिवा
और जो कोई हुक्म हो उन सब का खुलासा इस बात में पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। मोहब्बत अपने पड़ोसी से बदी नहीं करती। इस वास्ते मोहब्बत शरीयत की तामील है। खुदा चाहते हैं कि हम कामिल बने। क्या खुदा की शरीयत में 10 हुक्मों में से एक हुक्म यह नहीं है जो कहता है तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर? दूसरे अल्फाज में इसका मतलब यह है कि हमें अपने वालिदैन के लिए अपने फर्ज को पूरा करना चाहिए। हमें अपने जिस्मानी वालिदैन के लिए फर्जंदाना फर्ज को भी पूरा करना चाहिए। ताहम इससे पेशतर हमें सबसे पहले अपने रूहानी वालिदैन यानी आसमानी बाप और आसमानी माँ के लिए अपने रूहानी फर्जंदाना फ़राइज़ को पूरा करना चाहिए। खुदा हमें याद दिलाते हैं कि वो लोग जो भाइयों और बहनों के दरमियान मोहब्बत, हम आहंगी और इत्तेहाद बांटते हैं, वो ऐसे लोग समझे जा सकते हैं जिन्होंने शरीयत पर पूरा अमल किया है। यही वजह है कि खुदा ने हमें याद दिलाया कि मोहब्बत शरीयत की तामील है। किताब मुक़द्दस हमें बताती है कि खुदा मोहब्बत है। जैसा कि आज हम आसमानी वालिदैन का दिन मना रहे हैं, तो आइए हम अपने आप से पूछें कि बाप और माँ क्या चाहते हैं। हम एक बार फिर इस मामले पर गौर करते हैं। आखिरकार सामरिया और ज़मीन की इंतहा तक खुशखबरी की मुनादी मोहब्बत भरे दिल के बगैर नहीं की जा सकती। अगर हम सिर्फ अपनी जिस्मानी तंदुरुस्ती की परवाह करते हैं और सिर्फ अपने सुकून के बारे में सोचते हैं, तो हमें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं होगी कि दूसरे बर्बाद हो गए और नहीं बचाए गए। ताहम बाप और माँ ने हमें बताया कि हमें दुनिया में हर एक के साथ उस मोहब्बत को बांटना है। उन्होंने हमें बताया कि अपने दिलों और ज़हनों को दूसरों को गुनाहों की माफ़ी हासिल करने, निजात हासिल करने और आसमान की बादशाही में दाखिल होने की राह बताने के लिए वक्फ करें। अब जो वक्त हमारे पास बचा है उसे खुदा की ताज़ीम के लिए वक्फ करना चाहिए। दूसरे अल्फाज में हम सबको वो बनना चाहिए जो खुदा की मोहब्बत के साथ सारी दुनिया को बचा सकते हैं। 5 समुंदरों और 6 बड़े आज़मों के हर मुल्क, हर खित्ते और हर शहर में खुशखबरी की मुनादी की जानी चाहिए ताकि सारी दुनिया मोहब्बत के वसीला बदल सके। बाप और माँ ने मौत तक हमसे मोहब्बत रखी है। अगर हम वाकई खुदा की मोहब्बत को समझते और उनका एहसास करते हैं, जो सलीब पर कुर्बानी देने से नहीं हिचकिचाए थे, तो फिर हम सबको बतौर आसमानी खानदानी अराकीन हर एक के साथ ऐसी ही मोहब्बत बांटनी चाहिए। सिर्फ ज़ाहरी तौर पर खुदा के फर्जंद बनना काफी नहीं है। हमारे अमाल और रोजमर्रा जिंदगी गैर कौमों के मुशाबे नहीं होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब बातनी और ज़ाहरी तौर पर बतौर खुदा के फर्जंद जो कुछ हमने खुदा से सीखा है उसे दुनिया भर के लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और ये कि हम सयून के खानदानी अराकीन के तौर पर हमेशा खुदा के निजात के फजल के लिए बाप और माँ के शुक्रगुजार होंगे। आए मोहब्बत के वसीला खुशखबरी को मुकम्मल करें। शुक्रिया। खुदा आपको बरकत दें।